Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 11 Force and Pressure. Question number 5. Answer the following in 3 to 4 sentences. What are the effect of force? Effect of force is a force can move stationary object or stop a moving object. What the force can do? It can move the stationary object and it can move also and it can stop also with force. Force can change the speed of a moving object. फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वो उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. Number 2. Explain contact and non-contact force. Contact force. The force which come into action only when two objects come in physical contact with each other are called contact force. For example, muscular force and frictional force. Contact force क्या होते हैं? जो फोर्स के अंदर एक्शन, जब दो चीज़ों के साथ एक्शन होता है, राइट, और वो फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, इट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स which come into action without any contact of object with one another are called non-contact force. Example, electrostatic force and magnetic force. Non-contact force क्या होता है? The source which come into action without any contact of object, यानी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, राइट. So it is called as non-contact force. For example, electrostatic force, magnetic force, etc. Question number 3. What is electrostatic force? Why it is non-contact force? The force exerted by the charged body or another charged or uncharged body is called an electrostatic force. The force exerted by the charged body, right, on another charged body, example, right, another charged body is called electrostatic force. तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज बॉडी है और उसके साथ अनचार्ज बॉडी को रखा जाता है और वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं. This force can come into play even when the bodies are not in contact, so it is also called non-contact forces. Number 4. What are the states of motion? How can we charge force state the motion? Question number 4. What are the state of motion? How can a force change the state of motion? The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. Motion को हम कैसे कह सकते हैं? So it can be described by the speed and the direction of motion. तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट रन करता है और उसके डायरेक्शन पे से हम उसके स्टेट कर सकते हैं. When a force is applied on stationary object,
व्हेन इट मूव्स, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसे मूव करते हैं, तब उसके स्टेट को हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, यानी जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसे हम उसके ऊपर और फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, राइट। इफ द फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, और जब कोई ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन में जाता है और हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोर्स देते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, और अगर हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है मूविंग ऑब्जेक्ट का तो फोर्स से हम वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव साइंटिफिक रीजन। व्हेन वी स्टॉप pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally come to a stop. When we stop pedaling a bicycle, the frictional force between tire of a bicycle and ground stops, and ground opposes the motion of a bicycle. जैसे हम साइकिल स्लो कर देते हैं पेंडल का मारने के लिए, ओके, जब हम पेंडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद फाइनली वो रुक जाती है, बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ग्राउंड और व्हील्स के बीच, जो साइकिल के टायर्स के बीच फ्रिक्शन होता है, वो स्लोली बाय स्लोली कम होते जाता है। दैट इज वाई इट स्टॉप्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऑल्सो ऑपोजिट द मोशन ऑफ साइकिल। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो साइकिल के ऑपोजिट मोशन में, जो एयर ऑपोजिशन में होती है वो साइकिल के साथ मोशन में स्टॉप होती है, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऑल्सो ऑपोजिट, यानी जो डायरेक्शन में हम साइकिल चलाते हैं उसके सामने जो एयर है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करती है। देयरफॉर बाइसाइकिल स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, यानी हम पेडल देना बंद कर देंगे तो कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्लो हो जाएगी और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी। Number 2, atmospheric pressure is so high as 105 N/m square. Why we are not crushed by it? यानी जो एटमॉस्फेरिक हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उससे हम क्यों क्रश नहीं हो जाते हैं? We are not crushed under this pressure because pressure inside our body also equals the atmospheric pressure. जो हमारे बॉडी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल है एंड कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो इससे क्या होता है, जो बाहर का प्रेशर है वो नील हो जाता है, राइट। नंबर 3, द नेल इज पुश्ड इनटू अ वुडन प्लैंक फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड, राइट। जो नेल है उसके वुडन प्लैंक में से उसे हम पुश करते हैं निकालने के लिए। वाई? The area of the pointed end of nail is very small. जो उसका पॉइंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। Then that it's of the head, यानी उसका जो हेड है उससे उसका पॉइंट, नेल्स का पॉइंट छोटा होता है। For the same force, large pressure can be created by small area in the surface. तो वो सामने के बोर्ड पे क्यों स्टिक हो जाता है? क्योंकि जो हम प्रेशर उसके हेड पे देते हैं और उसका जो लेग यानी नीचे का जो पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम जब उसके ऊपर हैमर बेंड करते हैं यानी उसे पुश करते हैं तो पूरा प्रेशर वो पॉइंट पे लग के वो उसके अंदर फोर्सफुली एंटर हो सकता है। सो फॉर द सेम फोर्स लार्ज प्रेशर कैन बी क्रिएटेड बाय स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस। तो लार्ज सरफेस से हम स्मॉल एरिया के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। Therefore, a small force produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. यानी हमें वुडन प्लैंक पे नेल को फिट करनी है तो उसके हेड पे हम बैंग करेंगे तो वो इजीली प्रेशर से वो वुडन प्लैंक के अंदर पॉइंट हो सकती है।
द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स। जो शोल्डर बैग्स होते हैं हमारे, उसे ब्रॉड बैग्स जो स्ट्रैप्स क्यों दिए जाते हैं? वी नो दैट लार्जर इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द लेसर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने हिल्स के बारे में पढ़ा था, कूली के बारे में, यानी जो पोर्टर रहते हैं जो लगेज उठाते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। प्रेशर का जो सेशन, हम प्रेशर के सेशन में हमने ये सब डिस्कस किया था। तो सेम वे जो स्कूल बैग है उसका वेट ज़्यादा होता है, राइट। तो ब्रॉड स्ट्रैप रखने से क्या होगा, सरफेस का जो वेट है वो उसके ऊपर स्लो हो जाएगा, यानी उसका प्रेशर डिवाइड हो जाएगा एंड पे। सो शोल्डर बैग विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑक्यूपाई लार्जर एरिया, यानी वो लार्जर एरिया को ऑक्यूपाई कर सकती है प्रेशर को, एंड डू नॉट एक्सर्ट टू मच प्रेशर ऑन द शोल्डर। इससे क्या होगा, वो हमारे शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। Hence we can easily carry the bag. So this is the reason children we can easily carry the bag. अब समझो हमें शोल्डर के बेल्ट्स दिए ही नहीं हैं, राइट, और हमें हाथ में वो बैग कैरी करना है, तो क्या होगा, हमारे हाथ के एक हैंड्स के ऊपर ही पूरा प्रेशर आएगा। और जब हम शोल्डर के ऊपर बैग्स को हैंग करते हैं तो उसके जो स्ट्रेप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, तो क्या होगा, वो सरफेस का प्रेशर दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा और हमें हेवी नहीं लगेगा। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। व्हाट इज फोर्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट को हम फोर्स कहते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? मूविंग ऑफ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पे जो बुक रखी है उसे हम मूव कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर, उसके लिए भी हम फोर्स यूज़ करते हैं। हिटिंग अ बॉल विथ बैट, बॉल को भी हम दूर भेजने के लिए हम बैट से हिट करते हैं। मूविंग अ लोडेड कार्ट, ओके। इन अबव एग्जाम्पल ईच ऑफ एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, क्योंकि उसके बिना हम ये सब जो ऊपर एग्जाम्पल हमने देखे वो हम नहीं कर पाते हैं। एक्सप्लेन दैट force are due to an interaction between object, right? Suppose a man is standing behind a stationary car, the car does not move due to his pressure. यानी हमें क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन द फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होगा तो ही फोर्स अप्लाई होता है। सपोज हम एक कार के पीछे खड़े हैं, राइट, स्टेशनरी कार के पीछे, तो कार डजंट मूव ड्यू टू हिज प्रेशर, यानी हम उससे दूर खड़े हैं तो कार अपने आप शुरू नहीं होगी। नाउ अलाउ द मैन टू पुश द कार बिहाइंड। अब जब हम इसे धक्का देते हैं तो क्या होता है? द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब हम जो डायरेक्शन में उसे फोर्स देते हैं वो डायरेक्शन में कार मूव कर सकती है। द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, यानी उसे हमें धक्का देना होता है। हम सिर्फ खड़े रहेंगे तो हमारे प्रेशर से कार मूव नहीं करेगी, लेकिन हमें वो ऑब्जेक्ट को टच करना है, यानी हमें कार को टच करना है तो ही हम हमारा धक्का उसे आगे बढ़ने दे सकता है, राइट। दिस शोज दैट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन कार एंड द मैन। इससे हमें पता चलता है कार और मैन के बीच में इंटरेक्शन है। दिस एग्जाम्पल शोज दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। इससे क्या होता है? हमें पता चलता है कि हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, फोर्स देने के लिए, राइट, फोर्स को प्ले करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, एक्सप्लेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज शॉर्ट। अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड। जब हम कोई कॉइन और पेन हमारे हाथ में होता है और वो स्लिप होता है तो वो हमारे फ्लोर पे गिर जाती है, राइट। व्हेन द कॉइन और पेन इज हेल्ड इन आवर हैंड इट इज एट रेस्ट, यानी जब वो हमारे हाथ में होता है तब वो रेस्ट पोजिशन में होता है। एज सुन एज इट इज रिलीज्ड इट बिगन्स टू मूव डाउनवर्ड। जैसे वो हमारे हाथ से सरकने लगता है तो वो ग्राउंड की तरफ जाता है, राइट। हियर स्टेट ऑफ मोशन of a coin
or pen undergoes a change, तो इधर क्या होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, जैसे कि वो रेस्ट में से अब वो मूव कर रहा है. Here a force that change in the state of motion of a coin or a pen is called Earth's gravitational force. यानी जैसे वो सरकती है तो वैसे वो नीचे की तरफ जाती है. That is because of Earth's gravitational force. Every object in the universe exerts a gravitational force on every other object. यानी समझो कि हमारे हाथ में कुछ है और वो गिर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करके उसे नीचे की तरफ गिराता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. With this, we complete explanation of our chapter. Thank you and have a nice day, children.